Hello students of class 4th, I am going to teach you computer chapter 2 desktop management in Windows 10. Let's start the study. Chapter 2 desktop management in Windows 10. Hello children, the latest version of operating system by Microsoft is Windows 10. Windows 10 is easier to manage, the more secure than conventional Windows version. It can run on desktop computers, laptops as well as tablet. Windows 10 is realized with many useful and interesting features. हेलो बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण विंडोज़ 10 का प्रबंधन करना आसान है और पारंपरिक विंडोज़ संस्करण की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट पर भी चल सकता है। विंडोज़ 10 को कई उपयोगी और दिलचस्प विशेषताओं के साथ जारी किया गया है। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। इम्प्रूव्ड यूज़र interface. It has very attractive user interface and consists of many colorful themes. आइए जाना विंडोज़ 10 की कुछ रोचक और उपयोगी विशेषताएं। बेहतर यूज़र इंटरफेस, इसमें बहुत ही आकर्षक यूज़र इंटरफेस है। Improved multitasking. A new multiple desktops features let us run another set of windows as if one another screen, but without the physical monitor. Instead of having multiple windows open on top of each other on one desktop, we can set up a whole other virtual desktop for those programs to reside in. अनुचित एंड मल्टीटास्किंग। एक नई मल्टीपल डेस्कटॉप सुविधा से हम विंडो के दूसरे सेट को रन कर सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य स्क्रीन पर, लेकिन भौतिक मॉनिटर के बिना। एक डेस्कटॉप पर एक दूसरे के ऊपर कई विंडो खुले रहने के बावजूद हम एक संपूर्ण वर्चुअल डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं। उन प्रोग्राम्स के कहते हैं स्टार्ट मेनू। विंडोज़ 10 स्टार्ट मेनू blends elements of its Windows 7 predecessor with Windows 8 live titles interface. The start menu design contains some familiar elements, including links to common locations, a list of frequently used apps and programs, and power controls. A separate option called tablet mode also expands the start screen and is specially designed to make Windows 10 more usable on tablets and hybrid PCs. स्टार्ट मेन्यू। विंडोज़ 10 के स्टार्ट मेन्यू में विंडोज़ 7 के साथ पूर्ववर्ती विंडो के तत्व मिश्रित होते हैं। 8 लाइव टाइल्स इंटरफेस। इसमें मेन्यू डिज़ाइन में कुछ परिचित तत्व शामिल होते हैं, जिनमें आम स्थानों के लिंक होते हैं जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले ऐप और प्रोग्रामों की सूची, और पावर कंट्रोल्स टैबलेट नामक एक अलग विकल्प होता है। मोड स्टार्ट स्क्रीन को भी विस्तारित करता है और विशेष रूप से विंडोज़ को टैबलेट और हाइब्रिड पीसी पर 10 और अधिक उपयोगी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑफ विंडोज़ 10 दैट हैज़ रिप्लेस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर इन द ओल्डर वर्जन्स of Windows. It is faster, more secure, and has a lot of new features. It is designed to be a lightweight web browser with a layout engine built around web standards. Microsoft Edge Windows 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जिसने विंडोज़ के पुराने संस्करणों में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बदल दिया है। यह अधिक सुरक्षित है और इसमें कई नई सुविधाएं हैं। यह एक हल्के वेब ब्राउज़र के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लेआउट मानकों के साथ बनाया गया है। Cortana is the personal digital assistant in Windows 10, whom we can talk to or ask questions from, like how is the weather now in Mumbai, or search for a particular application on computer or on the internet. We can ask anything from Cortana and it will provide the answer accordingly. We can directly type question in the search box next to the start button on the taskbar. Cortana विंडोज़ 10 में व्यक्तिगत डिजिटल सहायक है।
हम टार में से बात कर सकते हैं, जैसे मुंबई में अब मौसम कैसा है। हम कार्टना से कुछ भी पूछ सकते हैं और यह उसी के अनुसार उत्तर प्रदान करेगा। टास्क बार पर प्रारंभ बटन के बगल में हम सीधे खोज बॉक्स में प्रश्न टाइप कर सकते हैं। द टास्क बार O. The long bar present at the bottom of the desktop is known as the taskbar. It contains the Start button, the Type Here to Search box, Quick Launch icons, the Notification area, a system clock, and the Show Desktop button. It also displays pinned, minimized and currently running programs. डेस्कटॉप के नीचे मौजूद लंबी पट्टी को टास्कबार के नाम से जाना जाता है। इसके स्टार्ट बटन, टाइप 2, सर्च बॉक्स, क्विक लॉन्च आइकॉन, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम क्लॉक और शो डेस्कटॉप बटन होता है। यह पिन किए गए न्यूनतम और वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित करता है। Now let us discuss the parts of the taskbar in details. Start button. The start button is present on the extreme left of the taskbar. When we click the start button, the start menu appears. It allows us to open programs in our computer and shut down, log off, restrict or sleep the computer. We can open the start menu directly by pressing the Windows logo key on the keyboard. अब टास्कबार के भागों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टार्ट बटन, प्रारंभ बटन। प्रारंभ बटन टास्कबार के बाईं ओर मौजूद है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। ये हमें अनुमति देता है हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम खोलने के लिए और शट डाउन करें, लॉग ऑफ करें, कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करें या सोएं। हम विंडोज़ लोगों को दबाकर सीधे स्टार्ट मेनू खोल सकते हैं। कीबोर्ड पर Type here to search. This text box is present next to the start button. It allows us to search for any application on our computer. It also allows us to search for any information from the internet. खोजने के लिए यहाँ टाइप करें। यह टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट बटन के बगल में मौजूद है। हमें अपने कंप्यूटर पर किसी भी एप्लीकेशन को खोजने की अनुमति देता है। यह हमें इंटरनेट से किसी भी जानकारी को खोजने की अनुमति भी देता है। टास्क व्यू बटन। वी कैन क्लिक द टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार टू सी ऑल ऑफ आवर रनिंग एप्स एंड प्रोग्राम्स। हम टास्क बार पर टास्क व्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्विक लॉन्च आइकॉन्स। These icons are present next to the task view button. They present the programs. They can be opened or launched with a single click. The taskbar also shows the icons for the programs that are currently open. ये आइकॉन टास्क व्यू बटन के बगल में मौजूद हैं। वे उन कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें एक क्लिक से खोला या लॉन्च किया जा सकता है। टास्कबार उन कार्यक्रमों के लिए आइकॉन भी दिखाता है। Notification area. This area consists of a group of icons that shows the status of certain system programs or computer settings. It also displays current system time and date. It also displays some other icons such as the network icon, volume control icon and new system notifications if any. Notification area. नोटिफिकेशन एरिया का मतलब है अधिसूचना क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ विशेष कार्यक्रमों या कंप्यूटर सेटिंग्स को दिखाने वाले आइकॉन का एक समूह होता है। यह वर्तमान सिस्टम का समय और दिनांक भी प्रदर्शित करता है। कुछ अन्य आइकॉन की प्रदर्शित करता है जैसे कि नेटवर्क आइकॉन, वॉल्यूम नियंत्रण आइकॉन और नई सिस्टम सूचनाएं यदि कोई हो तो। कस्टमाइजिंग द टास्क बार। वी कैन मेक चेंज टू अपीयरेंस, लोकेशन और सेटिंग ऑफ द टास्क बार। To do so, right click on the taskbar and select the taskbar setting option. This displays the taskbar setting window. हम टास्कबार की उपस्थिति, स्थान या सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टास्कबार पर राइट क्लिक करें और टास्कबार सेटिंग्स विकल्प का चयन करें। यह टास्कबार सेटिंग्स विंडो प्रदर्शित करता है। We will set the following options in the windows. Lock and taskbar. This option unlocks the position of the taskbar. If it is on, it means the taskbar is locked and you cannot move it to any other position on the screen. हम विंडो से निम्नलिखित विकल्प सेट करेंगे। टास्कबार लॉक करें। यह विकल्प टास्कबार की स्थिति को लॉक
अनलॉक करता है। यदि यह चालू है तो इसका मतलब है कि टास्क बार बंद है और आप इसे किसी अन्य डेस्कटॉप मोड पर स्क्रीन पर स्थित नहीं रख सकते। Automatically hide the taskbar in the desktop mode. This option makes the taskbar hide itself when not in use. टास्कबार में स्वचालित रूप से टास्कबार को नहीं ले जा सकते। यह विकल्प बनाता है छिपाएं जब उपयोग में न हो तो स्वयं भी छिपाएं। Use small taskbar buttons. This option reduces the size of the taskbar and the icons present on it. यह विकल्प टास्कबार का आकार और उस पर मौजूद आइकॉन को कम करता है। Use peek to preview the desktop. This option is used to set the peek features on. This will allow you to preview the desktop when you move your mouse to the show desktop button at the extreme right of the desktop. डेस्कटॉप का पूर्वावलोकन करने के लिए पीक का उपयोग करें। इस विकल्प का उपयोग पीक फीचर को चालू करने के लिए किया जाता है। यह आपको डेस्कटॉप को पूर्वावलोकन करने की अनुमति देगा जब आप अपने माउस को स्थानांतरित करेंगे। टास्कबार लोकेशन ऑन स्क्रीन। दिस ऑप्शन गिव्स यू द चॉइस टू मूव द टास्कबार टू द डिजायर्ड लोकेशन सच एज टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन पर टास्कबार स्थान। यह विकल्प आपको टास्कबार को स्क्रीन के ऊपर, बाएं, दाएं या नीचे जैसे इच्छित स्थान पर ले जाने का विकल्प देता है। आइकॉन्स। द स्मॉल पिक्चर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकॉन्स। दे रिप्रेजेंट ए फाइल, ए फोल्डर और ए प्रोग्राम। टू ओपन एन आइकॉन, डबल क्लिक ऑन इट। माउस। डेस्कटॉप पर मौजूद छोटी तस्वीरों को आइकॉन के रूप में जाना जाता है। वे एक फाइल, एक फोल्डर या एक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइकॉन खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। द आइकॉन्स विच आर जनरली प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप ऑफ ऑल कंप्यूटर्स आर। आइकॉन जो आमतौर पर सभी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर मौजूद होते हैं। दिस पीसी आइकॉन रिप्रेजेंट्स ऑल द फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर। यह पीसी आइकॉन सभी फाइलों, फोल्डरों और ड्राइव का प्रतिनिधित्व करता है कंप्यूटर का। रिसाइकिल बिन। द रिसाइकिल बिन contains all the details, files and folders. We can recover the deleted file from it anytime. However, the files which are deleted from the recycle bin cannot be recovered. रिसाइकिल बिन में सभी हटाई गई फाइलें और फोल्डर्स शामिल हैं। हम इससे डिलीट हुई फाइल्स को भी कभी भी रिकवर कर सकते हैं। हालांकि रिसाइकिल बिन से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क। द नेटवर्क आइकॉन डिस्प्लेज ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। नेटवर्क आइकॉन सभी कंप्यूटरों और अन्य को प्रदर्शित करता है, आपके कंप्यूटर से जुड़े उपकरण। कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। Customizing the desktop means changing the desktop background and screen saver, applying a theme, etc. डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना मतलब डेस्कटॉप को बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर को बदलना, थीम को लागू करना आदि। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। विंडोज 10 let us choose multiple background images for the desktop screen. These background images are known as the desktop background और wallpaper. Windows 10 हमें डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए कई पृष्ठभूमि चित्र चुनने देता है। इन पृष्ठभूमि छवियों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर के रूप में जाना जाता है। Use of shortcut menu. Whenever we right click on an icon, a pop-up menu appears displaying a set of commands. This menu is called the context menu or shortcut menu. This menu saves our time and gives us easy access to various commands. For example, a shortcut menu appears when we right click on the desktop. We can use this menu to sort icons on the desktops, refresh the computer, create new folder, personalize the desktop and so on. Use of shortcut menu means shortcut menu का उपयोग। जब हम किसी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉप अप मेनू कमांड का एक सेट प्रदर्शित करता है। इस मेनू को संदर्भ
मेनू या शॉर्टकट मेनू कहा जाता है। ये मेनू हमारे समय को बचाता है और हमें विभिन्न कमांडों तक आसानी से पहुंचाना प्रदान करता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देता है। हम इस मेनू का उपयोग डेस्कटॉप पर आइकन सॉर्ट करने, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने, नया फ़ोल्डर बनाने, डेस्कटॉप को निजीकृत करने आदि के लिए कर सकते हैं।